करें शुरू? कोई कार्यक्रम बगाया अभी? इनिशियली कुछ हमने थोड़ा बहुत देख लिया था, क्या क्या प्रेशर्स हैं, कितने कितने प्रेशर्स, हम उनको दोबारा रिवाइज करेंगे थोड़ा सा. So there are 4 factors determining the tissue fluid formation. Mind it, दोनों तरह से बात आती है, दोनों तरह से चीज को समझना पड़ता है हमें. Factors affecting filtration at the capillary membrane are same factors determining the formation of the tissue fluid, because whatever is getting filtered is going to form the tissue fluid itself. तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, जवाब वही आएगा. So 4 factors are there, as you can see. Capillary pressure, which is also known as capillary hydrostatic pressure, उसको शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल P स्मॉल c, that is the denomination. Second is the colloid osmotic pressure, जिसका हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं. Third is the interstitial fluid pressure, and fourth is the colloid osmotic pressure of the proteins in the interstitial compartment. 4 factors हैं, ठीक है. Out of them, the main force is the capillary pressure. It can be determined by 2 methods. ये किताबों में दिया हुआ है, दोनों हम डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, मगर 2 तरीके से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. माइक्रोपिपेट मेथड से कर सकते हैं, एंड देयर इज अनदर मेथड, आइसोग्रेविमेट्रिक मेथड. पुरानी गाइडन में दोनों के डायग्राम के हिसाब से दिया हुआ है कि कैसे कैसे इसको मेजर करते हैं. डिटेल में हमें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज that capillary pressure as determined by the micropipette method generates different pressures in the different animals. 30 to 40 millimeter is arterial, and ये अलग अलग है. ह्यूमन बींग से भी हो सकता है, डॉग्स में भी हो सकता है, रेट्स में कैट्स में भी हो सकता है, and 10 to 15 millimeter at the venous end of the capillaries. So mean capillary pressure by this method comes to about 17.3 millimeter of mercury. ये mean capillary pressure है, इसकी हम आगे बात करेंगे. While with the isogravimetric method, the pressure determined comes to about 17 millimeters of the mercury. ये पहला factor है. Second factor is colloid osmotic pressure of the plasma proteins. On an average, we take as 28 millimeters of the mercury for the process of filtration. Normally जब हम बात करते हैं तो हम बताते हैं 25 मिलीमीटर होता है. We call it as 25 millimeter of the mercury. हमने 28 क्यों लिया इसको? Why we have taken 28? Although out of the 28 you can see the distribution of the pressure. 19 millimeter is caused by the plasma proteins की वजह से होता है, और 9 millimeter is because of the Donan's equilibrium effect. ये आप देख चुके हो कि आयनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. वैसे होता क्या है? What is Donan's effect? Anybody? Can you define it precisely? नहीं. Donan's equilibrium effect को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? Donan's equilibrium effect predicts that product of concentration, product मतलब 2 गुणा करें तो product of concentration of diffusible ions on one side of the semi-permeable membrane will be same as that of the other side of the membrane. That is the, and that is caused by the presence of non-diffusible anions, that is proteins in the body. तो जिधर की तरफ प्रोटीन है उधर की आयोनिक कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा हो जाती है, बिकॉज ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन इज देयर. वो हम शुरू में पढ़ लिया होगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा अभी. So because of that, on the protein side, the ionic concentration is more. और जहां भी प्रोटीन होंगे आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो जो आपका प्रेशर है वो ज्यादा एक्सर्ट करेगा. इसको हम यूं समझ सकते हैं, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, दैट इफ द सेम अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज 6 to 8 ग्राम%. 6 ग्राम% अगर प्रोटीन लें और पानी में उनका सॉल्यूशन बनाएं और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर देखें, 6 ग्राम प्रोटीन इन द प्लाज्मा, दे विल बी एक्सर्टिंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर. प्रोटीन का कंसंट्रेशन वही है, वाटर में वही है, प्लाज्मा में वही है, मगर प्लाज्मा में जो अगर मौजूद है वही अमाउंट प्रोटीन का, वो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्योंकि डोनेंस इफेक्ट आएगा, मेम्ब्रेन इज देयर. मगर पानी में वो नहीं आएगा. ओके, so 9 millimeter is due to Donan's effect, and out of the proteins you know that 80% is exerted by the albumin while the 20% is exerted by the globulins. ये फिगर थोड़े ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि दे form part of the multiple choice questions
इन द प्री पीजी एग्जामिनेशन, आते हैं इस तरह से, कैपिलरी में से काफी सवाल आते हैं। द सेकेंड रादर थर्ड, अच्छा सवाल ये आ रहा था 28 क्यों माना हमने? एट द आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज द प्रेशर वी कंसिडर एज 25 millimeter of mercury. Colloid osmotic pressure at the arterial end is 25 millimeter of the mercury. As the blood passes from arterial to the venous end, the water is getting filtered, so the protein concentration is rising. पानी जब फिल्टर हो रहा है तो प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और वीनस एंड पे जाके करीब करीब वो 32 हो जाती है. It becomes 32 millimeter of mercury. So on an average, we take colloid osmotic pressure as 28 millimeter of mercury. That is the cause behind it. So interstitial, third factor is the interstitial tissue pressure. It varies from tissue to tissue. By direct cannulation method in the tissues, it has been determined to range from -1 to +2 millimeter of the mercury. On an average, -2 is the better figure. Then another procedure to determine is the implanted perforated capsule. Animals में यहाँ implant कर सकते हैं, उसमें fluid ooze out होता है और उसको हम pressure measure कर सकते हैं. It comes to about -6 millimeter of mercury. The third procedure is the cotton wick method. The pressure obtained is -1 to -3 millimeter of the mercury. Then there are certain areas, cranial vault, खोपड़ी के अंदर, brain, kidneys, positive pressure is positive. Interstitial tissue pressure is positive side. ठीक है. Skin and loose connective tissue pressure is negative. So on an average in the body, for the consideration the tissue fluid formation, we take this pressure as 3 millimeter of mercury. -3 is the pressure, and this is on the minus side in the most tissues because of the operation of the lymphatic pump. लिम्फेटिक पंप कंटिन्यूअसली ऑपरेट करके वहां से फ्लूइड को हटाता रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर नेगेटिव में आता है. एंड द फोर्थ फैक्टर इज द प्रोटीन्स आर फिल्टर्ड इन द कैपिलरीज. प्रोटीन्स में पोर होते हैं, फिल्टर हो सकते हैं, जाते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा भी जा सकते हैं, तो वहां भी प्रोटीन है. एंड द एवरेज प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन 3 ग्राम पर लीटर. 3 ग्राम पर लीटर नहीं है, डीएल है, परसेंट है ये, 3 लीटर. एंड दैट गिव्स ए प्रेशर ऑफ अबाउट 8 millimeter ऑफ मर्करी. तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपके टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. सो ऑन एन एवरेज व्हाट वी नो, एट द आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज द फोर्सेज व्हिच आर एक्टिंग एंड फेवरिंग फिल्ट्रेशन आर दीज. कैपिलरी प्रेशर फ्लूइड को बाहर फेंकेगा. That will cause movement of the water from intravascular to the extravascular compartment. Osmotic pressure of the proteins in the interstitial compartment 8 millimeter of the mercury, वो भी पानी को बाहर खींचेगा. Negative pressure in the tissues -3 millimeter of mercury, it will also try to draw the pressure outside. So there are 3 factors causing filtration. They are favoring filtration. Okay. Capillary pressure, osmotic pressure of the proteins in the interstitial compartment, and negative interstitial tissue pressure. The total comes to about 41 millimeter of mercury. While the only force opposing the process of filtration is the colloid osmotic pressure of the plasma proteins, 28 millimeter of the mercury. So at the arterial end, the net force acting is 41 minus 28, that is 13 millimeter of the mercury. And this force causes about 1/200, 201/200 का बराबर का करीब प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है इसमें से. ठीक है. Then at the venous end, the change in the forces are there, and only one force is changing. And what is that? Capillary pressure. Capillary pressure, instead of 30 millimeter of mercury, it becomes 10 millimeter of mercury. Other forces remaining same. Then the total outward force, the force which is causing outward flow of the water, is only 20 millimeter of mercury, and the inward acting force is the plasma colloid osmotic pressure, 28 millimeter of mercury. So net pressure at the venous end comes to about, कहाँ आ गया ये, net force 28 minus 21 is 7 millimeter of mercury acting inwards.
So there will be absorption of the filtered water at the venous end of the capillary. But because the outward force was greater than the inward force, arterial end पे जो filtering force था वो relatively ज्यादा है बजाय उसके जो venous end पे काम कर रहा है. इसका मतलब some amount of the water which was getting filtered will remain in the tissues, will not come back to the vascular compartment at the venous end of the capillaries. That fluid will be transferred back to the circulation by the lymphatics. So 90% is absorbed at the venous end, 10% is returned to the circulation by the alternative circulation, that is the lymphatic channels. So summary, if we call it, सारे forces को एक साथ summarize करते हैं. So forces acting outward, mean capillary pressure is 17.3 millimeter of mercury. 30 था आर्टीरियल एंड पे, 10 था वीनस एंड के ऊपर. इसको हमने निकाल लिया, एवरेज आउट करके आता है 17.3. माइंड इट, दीज फिगर्स आर ऑफ द आर्थर सी गायटन टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी. अलग अलग किताबों में अलग अलग वैल्यू मिल सकती है, आपको यही वैल्यू फॉलो करनी है, क्योंकि जब नीट का एग्जाम देंगे या प्री पीजी जब देते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है जिनका रेफरेंस दिया जाता है आंसर को टैली करने के लिए. And Guyton is one of the standard books throughout the world which is followed for this particular purpose. So forces acting, the mean capillary pressure is 17.3, interstitial fluid pressure is 3 millimeter, interstitial fluid osmotic pressure is 8 millimeter, total outward force is 28.3 millimeter, total inward force is 28 millimeter, that is plasma colored osmotic pressure. So net filtration force across the capillary is 0.3 millimeter of mercury. So this is causing the net filtration of the fluid, जो कि आपका वहां रुक जाता है. एब्जॉर्ब भी हो गया, फिल्टर भी हो गया, मगर जो बच गया वो इस प्रेशर की वजह से बचा है. So normal rate of filtration for the whole body because of this 0.3 millimeter mercury difference is about 2 milliliter per minute. इतना फिल्टर होता है, is about 120 milliliter per hour. ये भी एमसीक्यू का सवाल है. और 2.5 to 3 liters per day, ये भी एमसीक्यू का सवाल है. And that is returned to the circulation by the lymphatics. So from these figures, a filtration coefficient can be predicted. That is 0.3 millimeter mercury कितना filtration करता है? 2 मिलीलीटर कर रहा है 1 मिनट के अंदर. तो 1 मिलीमीटर प्रेशर कितने में करेगा? That is 6.67 milliliter per minute. That is the filtration coefficient, 6.67 milliliter per minute per millimeter. The mercury is for whole body. That is the filtration coefficient. ये भी एमसीक्यू का सवाल बनता है. So that was about the formation of the tissue fluid. हम बात कर रहे थे माइक्रो सर्कुलेशन की, मेटा आर्टेरियोज, आर्टेरियोज, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, इनका रेगुलेशन कैसे होता है. कंट्रोल ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन. ओके, so two types of the controls are there: acute control and long term control. The acute control is achieved, you can see, by rapid changes in the vascular tone, vasoconstriction or vasodilatation acting at the central level of arterioles, meta-arterioles and precapillary sphincter. इनका immediately action हो सकता है. Long term control occurs over a period of days, weeks and over the months. इसकी phenomena अलग है थोड़ी. तो हम थोड़ा इसको acute control का डिटेल देखेंगे कि मूवमेंट टू मूवमेंट जो टिश्यू फ्लूइड में बदलाव आ रहा है वो कैसे आ रहा है. So acute control occur under two conditions: change in the rate of tissue metabolism. So that is the primary determinant of the tissue flow into the body. That is the primary determinant of how much should be the cardiac output, how much should be the blood pressure, what should be the heart rate. The basic determinant is metabolic demand of the tissue. So change in the tissue metabolism and change in the oxygen availability कितनी है, ये दो चीजें डिटरमिन करेगी कि रेगुलेशन कैसे होने जा रहा है. So to increase the flow of blood into the tissues, there are certain theories available to explain the phenomena of increase in the blood flow or decrease in the blood flow. Vasodilator theory. This theory says that if there is an increase in the rate of metabolism in any tissue, then there is a reduced availability of the oxygen and the nutrients. Definitely, अगर एग्जिस्टिंग ब्लड सप्लाई चल रही है, मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई तो ये पूरी नहीं पड़ेगी, ज्यादा चाहिए थोड़ा. सो देयर इज रिलीज ऑफ, दे कॉजेज रिलीज ऑफ द वासोडाइलेटर सब्सटेंसेस
they diffuses through the tissues, reaches the blood vessels and results into the vasodilatation and increases the flow of the blood. The locally acting vasodilators, ये MCQ का सवाल आ जाता है इसमें. Locally acting vasodilators are adenosine. What is the source of adenosine? DNA? DNA कहां से आ गया? एडिनोसिन का क्या सोर्स है? एडिनलिन? नाम तो मिलता जुलता है थोड़ा. एडिनोसिन का क्या सोर्स हो सकता है? एनीबडी? बहुत सिंपल सवाल है ये. थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो जवाब निकल ही आएगा. हाँ, नाम आया कहीं से? एटीपी से. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड देन एडिनोसिन. ये सब हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं एटीपी के साथ में. और अगर एनर्जी की अवेलेबिलिटी तो ये बॉन्ड टूटते चले जाते हैं और अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या आता है? लास्टली एडिनिन, एडिनोसिन. एडिनोसिन बन गया, इसका मतलब कि हाइपोक्सिया बहुत ज्यादा है, तभी तो आपकी एनर्जी रिलीज हो गई तीनों बॉन्ड्स की, वरना तो एडीपी बन के रह जाता. So adenosine is a vasodilator, which is a product of the metabolism or breakdown of the adenosine triphosphate. ATP का product है ये. Then another vasodilator is carbon dioxide. ADP is also AMP. ये सब vasodilation करते हैं, intermediate products हैं. Histamine is a very strong vasodilator substance. Histamine causes vasodilatation throughout the body. It is the substance involved in the anaphylactic reactions also, which can result into sudden death because of the allergic reactions. Potassium is a vasodilator and hydrogen is a vasodilator. All these substances are the vasodilators and they all are involved not everywhere in the body. Some are potent in the heart, others are potent in the skeletal muscles, others are potent in the kidney. So difference is there, but ultimately this is the list of the vasodilator available at the tissue level for increasing the blood flow. The second theory is the oxygen lag theory. This theory suggests that because of the hypoxia causes relaxation of the vascular smooth muscles, resulting into vasodilatation. Because if the oxygen is not there, the smooth muscles cannot sustain their contraction. तो जो muscles में tone है वो sustain नहीं रह सकता लगातार अगर hypoxia है तो, और उसकी वजह से muscles relax होना शुरू हो जाती है, vasodilatation हो जाता है. Then third theory is the nutrition, lack of nutrition, lack of glucose. अरे मेरी सुन लो, बाद में बात कर लेना अपनी. Lack of glucose is reduced energy availability, lack of ATP, decreased contraction of smooth muscles and vasodilatation. Ultimately comes to the ATP only. There are two phenomena, हम शायद इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं. Reactive hyperemia and active hyperemia. What is hyperemia? What is hyperemia? What is anemia? आरबीसी काउंट से कौन डिफाइन करता है एनीमिया को आजकल? हैं? दो तरीके हैं, या तो हीमोग्लोबिन से करो या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से करो. आरबीसी से कौन करता है? चलिए छोड़िए, हाइपरीमिया की बात करें. व्हाट इज हाइपरीमिया? इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, रेडनेस हो जाना, ब्लड फ्लो बढ़ जाना किसी एरिया में, वो हाइपरीमिया कहलाता है. तो ये हाइपरीमिया और इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो लोकलाइज्ड है, ये दो तरह का हो सकता है, एक्टिव हाइपरीमिया एंड रिएक्टिव हाइपरीमिया. एक्टिव हाइपरीमिया अकर्स व्हेन द टिश्यूज आर डिमांडिंग मोर. जैसे मसल्स एक्सरसाइज करते हैं अपन, तो मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, मैकेनिज्म्स आर देयर. दैट टाइप ऑफ द इंक्रीज ब्लड फ्लो इज द एक्टिव हाइपरीमिया. एक्टिविटी बढ़ रही है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, हाइपरीमिया हो रहा है. ये रिएक्टिव है. ये रिएक्टिव है या एक्टिव है? ये जो अभी बताया मैंने, ये एक्टिव हाइपरीमिया है, एक्टिविटी बढ़ रही है. तो रिएक्टिव हाइपरीमिया क्या हुआ? Reactive hyperemia is that if the tissue becomes hypoxic for some duration of time, and then if you restore blood supply to that area,
then more blood flows to that area for small duration time. उस थोड़े से ड्यूरेशन के वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ता है, हाइपरीमिया हो जाता है. जैसे मैं उंगली को यहाँ से दबा के रखूं तो थोड़ी देर के लिए व्हाइट हो जाएगी, है ना, हाइपोक्सिक हो गई है, और उसके बाद में रिलीज करूंगा तो काफी देर तक ये लाल रहेगी. दैट इज हाइपरीमिया. यह रिएक्शन की वजह से आ रहा है हाइपरीमिया, वासोडाइलेटेशन हो रहा है. ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द लोकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ऑफ द ब्लड फ्लो. Then others are the endothelial factors acting into regulation of the local blood flow. हम local blood flow के regulation की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. So nitric oxide is a gas not normally found in the body, but whenever we require it, wherever we require it, it is being synthesized immediately. It acts and then it disappears again. ठीक है. It is a lipophilic gas, मतलब it is easily dissolved in the lipids of the cell membrane, released by endothelial cells. So if the endothelial cells are pressurized, मतलब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं हम तो एंडोथीलियल सेल्स पे प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती हैं, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होकर के ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है. ब्लड फ्लो इन द आर्टरी इंक्रीजेस. The shear stress on the vascular endothelial cells releases nitric oxide and results into vasodilatation. This is a very important mechanism for the regulation of the blood flow. Angiotensin II also releases nitric oxide. Why it should do so? Because angiotensin raises blood pressure. It raises blood pressure. So it is raising blood pressure is a different phenomena. Is it necessary that it should release nitric oxide? No. So how does it happen? The enzyme responsible for the formation of nitric oxide is the nitric oxide synthase. This enzyme is an inducible enzyme. It is inherently active also and it is inducible also. मतलब जो बॉडी में अगर कंडीशन में बदलाव आता है कोई खास, तो ये एंजाइम इंड्यूस हो सकता है और एक्टिविटी शुरू कर देगा. So because it is inducible enzyme, the arginine is being acted upon by this enzyme, causing formation of the nitric oxide. This nitric oxide causes formation of the cyclic GMP, guanosine monophosphate, which blocks calcium channels in the smooth muscle fibers, and that causes relaxation of the smooth muscle fibers. So it causes vasodilatation. That is the mechanism of action of the nitric oxide. Of course, मैंने पहले बताया था half life of the nitric oxide is 6 seconds only. Mode of action you can see nitric oxide, guanylyl cyclase in the vascular smooth muscles, GTP पे एक्ट करता है, ये cyclic GMP बनता है, activating the protein kinase is there, closure of the calcium channels and muscle relaxation is there. That is the mechanism of action of the nitric oxide, causing dilatation of the blood vessels or relaxation of the smooth muscles of the blood vessels. Then endothelium, besides secreting nitric oxide, also secretes another locally acting substance that is known as endothelins. एक तरफ नाइट्रिक ऑक्साइड है जो वासोडाइलेटेशन करती है, दूसरी तरफ एंडोथेलिन्स हैं जो वासो कंस्ट्रिक्शन करती हैं. They are released by the damaged vascular endothelial cells. Endothelins are there. ये थी acute control mechanisms. Then we have got the long-term regulation of the local tissue blood flow. One is increased tissue vascularity. अगर ज्यादा दिनों तक ये सिस्टम काम नहीं कर रहा तो कुछ और करना पड़ेगा. और क्या कर सकते हैं हम? एंजियोजेनेसिस कर सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स आर देयर. नई कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे ग्रो होती है. एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स आर रिलीज, vascular growth factors are released by the tissues, by the fibroblasts, and the blood vessels are growing. So formation of new factors are there by vascular endothelial growth factors, fibroblast growth factors, platelet derived growth factors, and angiogenin, and some steroid hormones causes disappearance. ये तो बढ़ा रहे हैं. So these four factors can cause formation of the new blood vessels in the relatively long-term hypoxic tissue bed.
अगर लंबे समय तक हाइपोक्सिया रहता है किसी टिश्यू बेड में तो नई ब्लड वेसल जनरेट होना शुरू हो सकती हैं, हो भी जाती हैं, ठीक है। दैट इज वैस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस। नाउ steroid hormones causes disappearance of the blood vessels. This is very important. Clinically it is also important. कुछ जगह पे हम ब्लड वेसल्स का ग्रोथ नहीं चाहते बिल्कुल ही। वी नो कॉर्निया इज एवैस्कुलर, यहाँ ब्लड वेसल्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स अगर ग्रो हो गई यहाँ पे तो आपकी जो विजन है वो धुंधली हो जाएगी, सारी दिखना कम हो जाएगा। देयर आर सर्टेन इन्फेक्शंस ऑफ द आई विच कैन कॉज वैस्कुलराइजेशन ऑफ द कॉर्निया, उसको रोकना है आपको। स्टेरॉइड्स आर देयर, सो इफ यू गिव स्टेरॉइड्स दे कैन ब्लॉक द एंजियोजेनेसिस and prevent the loss of the vision. Then another substance is angiostatin. प्लाज्मिनोजन के बारे में पता है? प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिन सिस्टम नाम सुना है? प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिन सिस्टम क्या काम आता है, कब एक्टिवेट होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? हाँ, क्लॉटिंग से रिलेटेड होना चाहिए डेफिनेटली। क्या रोल है इसका कुल मिला करके? व्हाट इज दिस सिस्टम? प्लाज्मिनोजन सिस्टम। ये क्लॉटिंग करेगा या क्लॉटिंग को रोकेगा? नहीं करेगा क्या ये क्लॉटिंग को एनहांस करेगा या रोकेगा, या क्लॉट लाइसिस करेगा? क्या करेगा ये? Plasmin is a strong proteolytic enzyme formed from plasminogen, which is a globulin. Plasma में globulin है, plasminogen, which is acted upon by the enzyme, and then it is converted into plasmin. It is a strong proteolytic enzyme, and it causes dissolution of the clot also. तो जब भी क्लॉट, ध्यान दीजिएगा, जब भी बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म इनिशिएट होती है, एक्टिवेट होती है, जैसे कांटेक्ट विद द वाटर वेटेबल सरफेस और कांटेक्ट विद एक्योलिन और अदर फैक्टर्स, कोलेजन से कांटेक्ट में आता है तो क्लॉटिंग शुरू होती है। तो एनी फैक्टर यूजुअली व्हिच इनिशिएट द क्लॉटिंग मैकेनिज्म बाय एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12 आल्सो कॉजेस साइमल्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ द प्लाज्मिनोजन सिस्टम। ये स्लो सिस्टम है, वो फास्ट है, पहले कोगुलेशन होगी फिर कोगुलेशन लाइसिस होगी। ओके, दैट इज द प्लाज्मिन सिस्टम, एंड दिस इज इनहिबिटिंग नेचुरल अकरिंग इनहिबिटर ऑफ द एंजियोजेनेसिस। ये रोकता है उसको। एंड सेकंड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। पहला था एंजियोजेनेसिस, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ द कोलेटरल सर्कुलेशन। नई वेसल्स बनके जो वेसल डोरमेंट थी वो भी खुलना शुरू हो जाती हैं और कोलेटरल्स डेवलप हो जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म व्हिच प्रिवेंट्स the myocardial infarction in slowly obliterating coronary vessels. अगर coronary vessels एकदम से बंद हो जाए तो बात अलग है, फिर तो इंफार्क्शन होना ही होना है। मगर अगर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे ब्लॉक हो रही है, जैसे कि स्मोकिंग करता है कोई आदमी, मैं भी करता था, तो धीरे धीरे हाइपोक्सिया की वजह से एंजियोजेनेसिस, कोलेटरल सर्कुलेशन ओपन होना शुरू होता है और मायोकार्डियल डैमेज रुक जाता है, नहीं हो पाता। ठीक है, तो damage to the tissues can be prevented on the long term basis by opening of the collateral circulation. अरे यार, so ultimately at the tissue level causing vasoconstriction are norepinephrine and epinephrine, angiotensin second and vasopressin. ये आपके फैक्टर्स हैं जो वाजोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। देन वाजोडाइलेटर्स आर ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, कैल्शियम कॉजेज वाजोकंस्ट्रिक्शन, पोटेशियम कॉजेज वाजोडाइलेटेशन, मैग्नीशियम कॉजेज वाजोडाइलेटेशन, ये इनहिबिटर्स हैं सारे। हाइड्रोजन वाजोडाइलेटेशन, स्लाइट एल्कोलोसिस वाजोकंस्ट्रिक्शन, एसीटेट सिंथाइटिस वाजोडाइलेटेशन। इस लिस्ट से हमें एक चीज पता लग रही है कि बॉडी में वाजोडाइलेटर्स ज्यादा हैं in comparison to the vasoconstrictors. Secondly, vasoconstrictors जो भी हैं, they are more effective than the vasodilators. They are more effective. Strong vasoconstrictors are there. CO2, vasodilatation in most of the tissues,
मार्क्ड वाजोडायलेटेशन इन द ब्रेन, उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। एक्टिंग टू द वाजोमोटर सेंटर इट कॉज ए स्ट्रॉन्ग वाजोकंस्ट्रिक्शन। सीएनएस इस्कीमिक रेस्पॉन्स का ध्यान दीजिए, वो CO2 की वजह से आ रही है और स्ट्रॉन्ग वाजोकंस्ट्रिक्शन करती है ये, ठीक है। हाइपोक्सिया का पल्मोनरी वैस्कुलेचर पे क्या इफेक्ट है? हाइपोक्सिया का बॉडी के वैस्कुलेचर पे क्या इफेक्ट है? ब्लड वेसल्स पे वाजोडायलेटेशन होता है। हाइपोक्सिया कॉजेज वाजोडायलेटेशन। और पल्मोनरी टिश्यूज में क्या होगा? लंग्स में सेम इफेक्ट आना चाहिए, है ना? आ नहीं बढ़ रहे हो तुम? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया ऑन पल्मोनरी ब्लड वेसल्स? इज इट वाजोकंस्ट्रिक्शन और वाजोडायलेटेशन? इट इज वाजोकंस्ट्रिक्शन। बिल्कुल उल्टा इफेक्ट आता है लंग्स के अंदर, ध्यान दीजिएगा। लंग्स में हाइपोक्सिया वाजोकंस्ट्रिक्शन करता है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस? ऐसा क्यों हो रहा है? फर्क क्यों आ रहा है? लंग्स का क्या फंक्शन है? टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इफ द एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स लेस एयर, दैट इज हाइपोक्सिया। तो जो ऑक्सीजन ही नहीं है तो ब्लड वेसल्स को खुला रखने से क्या फायदा है भाई? उनको बंद कर दिया जाता है। सो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, हाइपोक्सिया इज देयर, देन दैट विल कॉज पल्मोनरी वाजोकंस्ट्रिक्शन। बाकी बॉडी में हमेशा वाजोडायलेटेशन होता है। नाउ वी कम टू द लिम्फेटिक्स। छोटा सा टॉपिक है। दे स्टार्ट इन द टिश्यूज एज ब्लाइंड लूप्स, दोनों तरफ से खुली नहीं है। कैपिलरी तो दोनों तरफ से खुली है, आर्टीरियल एंड वीनस एंड, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इट स्टार्ट एज ए ब्लाइंड लूप। देखिए ब्लाइंड लूप से शुरू हो रही है, बंद है एक तरफ से। ऑल आर क्लोज लाइक दिस, दे आर इनिशियल लिम्फेटिक। So the lymphatic system basically consists of a network of the lymphatic vessels, various lymphoid tissues and organs scattered throughout the body. सबका नाम पता है क्या? होना चाहिए। कहाँ कहाँ होते हैं lymphoid organs? कहाँ कहाँ होते हैं? थाइमस होता है, स्प्लीन होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, और नहीं इंग्वाइनली पूरी बॉडी में ही होते हैं भाई। एवरीवेयर लिम्फ नोड्स आर देयर। पायर्स पैचेज होते हैं, कहाँ होते हैं ये? इंटेस्टाइन्स में होते हैं। टॉन्सिल्स हैं। तो ऑल दीज आर लिम्फोइड ऑर्गन्स, यू मस्ट रिमेंबर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ओके, these lymphoid organs house phagocytic cells and lymphocytes which play an essential role in the body's tissue defense. Okay, lymphocytes ब्लड में दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? बी एंड टी। बी कहां से आते हैं? टी कहां से आते हैं? बी बोन मैरो से आते हैं और टी बिल्कुल ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इनिशियली बोन मैरो से ही आते हैं। फॉर देयर फंक्शनल मैच्योरेशन, बी लिम्फोसाइट मैच्योर इन द बोन मैरो और बर्सा ऑफ फैब्रिकस इन द बर्ड्स, उसका बराबर का बात है वो। एंड टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन द थाइमस। ठीक है। सर्कुलेटिंग ब्लड में कौन से ज्यादा होते हैं, बी या टी? टी लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं। पढ़ना दोबारा जाकर के, टी लिम्फोसाइट्स आर मोर, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कन्वे करते हैं। ठीक है। So this lymphatic system is an accessory system of the fluid transport. You can see can carry large molecules back to the blood, present everywhere except कहाँ कहाँ नहीं होता lymphatic system? ये MCQ का सवाल है। lymphatic system और lymphatics are not found where? superficial layers of the skin, मतलब एपिडर्मिस में नहीं होता। डर्मिस में तो होता है, एपिडर्मिस में नहीं मिलेगी लिम्फेटिक्स आपको। सीएनएस में लिम्फेटिक्स नहीं होती। ठीक है, वहां सीएसएफ होता है, lymphatic नहीं होती। Endomysium of the muscles, lymphatics are not there, and bones, lymphatics are not there. So these are the sites where normally lymphatic channels are not found. Otherwise, elsewhere, everywhere the lymphatics are present.
तो एज आई सेड lymphatic capillaries begins as a blind loop, खुला हुआ नहीं है दोनों तरफ से, बंद है एक तरफ से, and they are kept in place by the anchoring fibers. Fibers होते हैं, collagen fibers are there, elastic fibers are there, which keep them in the place. They contain, just like the endothelium in the capillaries, endothelial cells are there, and they have got a slightly difference than the capillary endothelium. यहाँ जो cells हैं वो एक दूसरे को overlap करते हैं थोड़ा, तो flap system is there. In the lymphatic capillaries, there is a flap system, overlapping of the endothelial cells is there, and anchoring filaments are there. So if the anchoring filament moves, then this channel can be opened for allowing the entry of the large molecules and water. That is the mechanism of the lymphatic operation. They are provided then, lymphatics are again just like the veins in the lower part of the body. They are provided with the valve system. Lymphatic channels में भी valve system होता है, इसका मतलब one way flow ही होगा, वापस नहीं जा सकता lymph, valve system से उसको block कर दिया जाएगा. And all the lymphatics in most of the body places, they are interrupted continuously by the lymph nodes. तो lymph nodes में afferent lymphatics होंगी, वहाँ release करेंगे अपने content को, और efferent lymphatics होगी. So these lymph nodes play a very important part in preventing the dissemination of the infection from parts of the body to the central system. आपके अंगूठे में infection हुआ है, ये lymph gland swell हो जाएंगे, ये swell हो जाएंगे, तो वहां से जो इन्फेक्शन आ रहा है तो वो यहीं रोक दिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा. यहाँ दर्द होगा, बुखार आ जाएगा, सब कुछ होगा, मगर they will prevent the entry of the toxic substances or microbes into the general circulation. So all these lymphatics drains into the thoracic duct and the right lymphatic duct and ultimately reaches to the blood stream. Lymph formation हम देख चुके हैं already, derived from the tissue fluid of course. Same composition at the beginning, वहाँ पे वही composition, but from different tissues the lymph composition changes depending upon the function of that particular tissue itself. Normal protein concentration 2 gram%, liver के lymph में 5 से 6 ग्राम हो सकती है. ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है? लिवर के lymph में बता ला नहीं, चाय का सॉरी मेरे को दे, काहे के लिए देख रहा था, टाइम तो मैं देखूंगा ना यार, तुझे क्यों चिंता होनी चाहिए टाइम की, है टाइम की तो मुझे चिंता होनी चाहिए. टाइम की चिंता क्यों है ये बता, जाने यार, रोल नंबर लिखवा दे मेरे को, ला निकल बाहर. नहीं मैं यही शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट टर्निंग यू आउट वन बाय वन. So liver lymph has got high concentration of proteins because proteins are synthesized in the liver and they have to be added to the general circulation to be utilized elsewhere. Intestine से भी absorb होके आते हैं, although they are absorbed in the form of the amino acids. Protein के रूप में absorb नहीं होते amino, but they are synthesized there. And the thoracic duct lymph जो कि ultimately drain होता है, that contains 3 to 5 gram% of the protein. That is the function basically. Rate of lymph flow is very important. 100 milliliter per hour through the thoracic duct. दो रूट है basically जो आपके lymph को ला रहे हैं. One is the thoracic duct and 20 milliliter through the other channels are there. So total lymph flow into the body is 120 milliliter per hour or 2 to 3 liters per day. ये याद रखने का. What factors can affect the flow of the lymph? Okay. एलिवेटेड कैपिलरी प्रेशर, ये ब्लड की बात कर रहे हैं हम. कैपिलरी प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो लिम्फेटिक फ्लो भी बढ़ेगा. So all those factors which increases the capillary pressure will cause increased tissue fluid formation and will cause increased lymphatic flow. प्लाज्मा कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर अगर घटता है तो ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा. तो अल्टीमेटली इनको अलग अलग बोलने के बजाय मैं ये कह दूं कि all those factors which are increasing the formation of the tissue fluid will cause increase in the lymphatic flow. ये बड़ी सरप्राइजिंग फिनोमिना है. देखिए आप, इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड प्रेशर वी हैव कंसिडर्ड एज माइनस में होता है नॉर्मली, -3 मिलीमीटर.
-1 to 3 मिलीमीटर वेरी कर सकता है। और ये रेट ऑफ लिम्फ फ्लो है, -3 पे ये मान लें, जो जो ये बढ़ रहा है टिश्यू प्रेशर, तो ये फ्लो भी बढ़ता जा रहा है। ज्यादा प्रेशर है तो खोल के आगे बढ़ाएगा उसको, ठीक है। मगर अगर एक लेवल से ज्यादा बढ़ता है टिश्यू प्रेशर तो लिम्फ फ्लो नहीं बढ़ता, लिम्फेटिक स्टार्ट गेटिंग कंप्रेस्ड एंड फ्लो सीजेस, बढ़ना बंद हो जाता है। So there is a definite relationship between the tissue pressure and the rate of lymph flow. So first factor affecting the lymphatic flow was the capillary pressure. Second is the lymphatic pump. Lymph capillaries also are provided with the modified smooth muscle cells are there which can contract and cause flow of the lymph in the forward direction. उनमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, एंड बिकॉज द वेल्स आर देयर दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द लिम्फ। ओके, थर्ड आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, ये अंदर के फोर्सेस थे। एक्सटर्नल फोर्सेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल, मैं बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहा हूं, दे आर कंप्रेसिंग द लिम्फेटिक कैपिलरी एंड दे आर इंक्रीजिंग टिश्यू फ्लो। मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, मसल की जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिम्फ कैपिलरीज को कंप्रेस करते हैं, लिम्फेटिक फ्लो बढ़ जाता है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, even arterial pulsation near lymphatics can cause movement of the lymph in the lymphatic channel, and compression from outside, मालिश करवा रहे हैं आप तो उससे भी आपका lymph flow बढ़ जाएगा। So overall function of the lymphatic system is control of the interstitial fluid protein concentration, because capillaries allow the movement of the proteins from intravascular to the extravascular compartment. तो जो प्रोटीन वहां टिश्यूज में आ गए हैं उनको वापस पहुंचाना जरूरी है, वरना ब्लड में कम हो जाएंगे। सो दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द लिम्फ। सेकेंड इज टू मेंटेन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। अगर जो फ्लूइड फिल्टर हुआ है उसको वहां से लगातार नहीं हटाया जाएगा तो पानी वहां एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और ईडिमा क्रिएट कर देगा। सो दैट इज द सेकेंड फंक्शन। एंड थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ द इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर मेंटेन जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो फ्लो रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा आपका। ये हमारे उसमें नहीं है, क्यूरिकुलम में नहीं, ये क्लिनिकल वाले पढ़ाएंगे आपको ईडिमा क्या होता है। क्या होता है वैसे ईडिमा? लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी। डिफाइन करो, यहां मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है। हाइपोप्रोटीनेमिया हो गया, डेफिनेशन क्या हुई ईडिमा की? स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड हो जाता है, ये सब ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम ऑफ द बॉडी। नॉर्मली फ्री फ्लूइड जो इकट्ठा होता है हम उसको ईडिमा कहते हैं। ईडिमा हालांकि दो तरह का दिखाया मैंने, कौन सा? ये नहीं, इंट्रासेल्युलर ईडिमा एंड एक्स्ट्रासेल्युलर ईडिमा। इंट्रासेल्युलर ईडिमा इज वेरी डेंजरस। सेल में अगर वाटर इकट्ठा होता तो सेल तो बस्ट ही हो जाएगा, ठीक है ना, उसके कारण अलग है। हम जब बात करते हैं क्लिनिकली तो एक्स्ट्रा सेलुलर ईडिमा की बात करते हैं, जो पिटिंग भी हो सकता है और नॉन पिटिंग भी हो सकता है। पिटिंग का मतलब पीटना नहीं होता, दबाना होता है, ठीक है। अगर दबाने से खड्डा पड़ जाए तो पिटिंग ईडिमा है, दबाने से खड्डा नहीं पड़े फिर भी ईडिमा तो है, तो नॉन पिटिंग कहलाता है, ठीक है। मौका मिलेगा तो बात करेंगे इस बारे में। वैसे रीजनल सर्कुलेशन की हमारे पास एक ही क्लास बची है, तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या। यस, पांच मिनट में पढ़ लें थोड़ा सा मेरे ख्याल है ना। कॉरोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं। कॉरोनरी सर्कुलेशन रेफर्स टू ब्लड फ्लो टू द हार्ट, उसको हम कॉरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इट इज शॉर्ट एंड रैपिड। इतना सा एरिया है जहां पे सर्कुलेशन होता है, तो छोटा सा एरिया है, शॉर्ट भी है और रैपिड सर्कुलेशन भी हो जाता है। अनदर मेन फीचर्स है इस कुल मिलाकर के, फ्लो मेनली अकर ड्यूरिंग डायस्टॉल, क्योंकि सिस्टॉल के दौरान तो मसल खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं और ब्लड वेसल्स उन्हीं मसल्स के अंदर ही दबी हुई होती है ज्यादातर, तो उधर दब जाती हैं,
तो फ्लो हो ही नहीं पाता, ज्यादा नहीं हो पाता, होता तो है। तो फ्लो मेनली अकर ड्यूरिंग द डायस्टोल। कार्डियक में जो बड़ी वेसल्स हैं उसमें एनास्टोमोसिस नहीं होती, छोटे लेवल पे हो सकती हैं, बड़े बड़े लेवल पे एनास्टोमोसिस नहीं होती। रिच सर्कुलेशन इज देयर, 5% ऑफ द कार्डियक आउटपुट गोज टू द हार्ट इटसेल्फ। छोटा सा एरिया है, ऑर्गन है, मगर इतना ज्यादा ब्लड चाहिए उसको। ओके, एंड एफिशिएंट ऑटो रेगुलेशन, ब्लड फ्लो जो है हार्ट खुद अपना रेगुलेट करता है, उसको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं है उसके ऊपर। It has got a very high capillary density in comparison to the other parts of the body. They are measured somehow 3000 capillaries per square millimeter of the area. Very high density of the blood flow is there. जरूरी भी है क्योंकि लगातार काम करता है। लगातार करता है क्या काम हार्ट? नहीं करता, मैंने बताया था, रिलैक्स करता है भाई, आधे टाइम तो रिलैक्स ही करता रहता है, डायस्टोल में होता है, मगर फिर भी ज्यादा चाहिए उसको। तो इन दी एडल्ट 1 कैपिलरी पर मसल फाइबर, ये बहुत हाई डेंसिटी है, हर मसल के लिए एक कैपिलरी मौजूद है ब्लड सप्लाई के लिए। देन देयर इज अ डिफरेंस इन द ब्लड फ्लो, एंडोकार्डियम में अलग तरह से फ्लो होता है, मायोकार्डियम में अलग तरह से फ्लो होता है, एपिकार्डियम में फ्लो अलग तरह से। सो देयर आर रीजनल डिफरेंसेस इन द ब्लड फ्लो। जो सब एंडोकार्डियल पार्ट है हार्ट का, सब एंडोकार्डियल मीन्स चैम्बर से रिलेटेड जो अंदर जो लेयर आ रही है वो एंडोकार्डियम कहलाती है, वहां पे ब्लड फ्लो यूजुअली बहुत कम होता है, दैट इज नोन एज सब एंडोकार्डियल एरिया, एंड इट इज द मोस्ट लायबल टू द इस्कीमिक कंडीशन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यस, व्हाई सब एंडोकार्डियल एरिया इज मोर ससेप्टेबल टू हाइपोक्सिया और इस्कीमिया? क्योंकि जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब प्रेशर राइज होता है वेंट्रिकल्स में, तो सबसे ज्यादा प्रेशर इफेक्ट आएगा किसके ऊपर? जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है उसी को चोट खानी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा दबाव कहाँ पड़ेगा? सब एंडोकार्डियल रीजन के ऊपर। तो वो सारी वेसल्स ज्यादा कंप्रेस होती हैं, तो वहां इस्कीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये एक स्टैटिस्टिक्स है, ये बढ़ती चली जा रही है। खैर ऑल कॉज मोर्टिलिटी देखें, ऑल कॉज मोर्टिलिटी, सभी कारणों को मिला के जो मरने वालों की संख्या है उसमें कार्डियक डेथ या हाइपरटेंसिव डेथ सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम डेथ इन द वर्ल्ड आर अकरिंग बिकॉज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ओके, ये आपकी कॉर्नरी आर्टरीज है। देयर आर 2 मेन आर्टरीज। ये हार्ट का डिसेक्शन कर लिया एनाटॉमी में, फिर ज्यादा जरूरत नहीं है। राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द एरिया विच इज नोन एज, ये एरिया क्या कहलाता है एओर्टा का? What is this area known as? Coronary arteries arises from the sinus of, अभी नाम बोला था पहले, साइनस ऑफ वेल्सल्वा, नाम सुना है? हाँ, उसको एरिया को कहते हैं साइनस ऑफ वेल्सल्वा, वहीं से तो अराइज होती कॉर्नरी आर्टरीज। कॉर्नरी आर्टरीज, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी अराइजिंग परपेंडिकुलर टू द असेंडिंग एओर्टा। बेसिक बात ये ध्यान रखने की बात है। And then divides of course into the left anterior descending circumflex branch, marginal branch is there, posterior descending artery is there, ठीक है, all these are there। ये अलग अलग दिखा रखा है आपको। Now there is something like coronary dominance, अब इसको हम बाद में देखेंगे।